Right click. Now today we talk about the variables and all. Okay. Open VS Code. I need to write also. Understand a little bit about the variables and data types. It's simple, you know all these things. Okay. But there's subtle differences, so we will cover them up. One second. Okay, Bismillah Rahman Rahim. So what are we saying is we're going to OneNote. Now when we talk about the variables, okay, we have the literals, variables, we already know them, okay, constants and all those things, right? And now variables here, we have data types and all. Let me check the drop list. It's not working. So what are we saying is that we have, for example, a variables, okay, and we have the literals, and we mostly have the constants, okay. Every language have these things, and the same is the JavaScript. Literal is like where I say, for example, some string literal, like I write Junaid, okay, and I write 24 as a number and all that, okay. But and we have constants. These are literal constants right now because they can't change. And we usually, you know, put them in a variables, like we say a equals to 24. Now we do not specify the data type because it is dynamically typed language. The language is dynamically typed. It gauges that a is 24. Now if I say a equals to Junaid, now it will put up the string in the a. Okay, the data type of a will be string. The type of a is number. We usually have three primitive data types. So if we say data types, okay, we have the primitive data types, okay, we have the trivial, we have the objects, that means user defined data types, okay, and we have also the inbuilt objects and all. We'll see them later. But what are the primitive? We have three only. Here everything is taken as a floating point, 64-bit floating point representation. IEEE 754, you know, I have told you once. It's all, you don't have integers, different integers, and you know, likewise we got int, we got float, we got double. Here everything is a 64-bit, whatever it is, and we call this a number. But what? Number captures everything, whether it is integer or non-integer. I mean, it's a real number or whatever it is. Okay, rational, irrational, every number is taken as a number. This makes sense because we all believe in numbers. For us, everything is a number, and same JavaScript believes in that also. It takes everything as a number. Okay, 64-bit floating point numbers. Okay, no floating point 7.4 representation, 64-bit. It's that thing. Then we have the strings, and we have the boolean. Strings we know, right? There's no characters different and strings different. It's all strings. So that's why you put up in a single quote Junaid, or you put up in a double quote, doesn't matter. Same. So we put up everything is a string. Everything is what? It's a second primitive data type, and the third data type we have is the boolean. Is what? The boolean means true or false. You can have either true or false simply. Okay. Then in trivial we got the null. We got null. Okay. We got undefined, and we also sometimes have here, you know, long bit. Okay, but keep it, we'll discuss this later on. And in objects we have a lot of objects, we know them. Okay,
So we can have our own classes and all everything, and there are inbuilt objects and all. Uh, so if we have primitive type, there's a number, string, and boolean. Now, how to declare a variable? How to declare a variable? For that, we have three things. We have three ways we use variables and constants basically. One is the old way, which is not used these days, but still we can do that. Is a var. We use var, we use let, and we use var to declare a variable. Say for example, we say var a equal 24. A type of a is number, and we declare it with the var. Okay, var is to declare a variable. If we say simply a equals 24, it also is a var. Okay, but we should not say it like this. We should say let a is equal to 24. Okay, but what's the difference then? And if we say const a equals to 24, it becomes a constant, like hash defined we have in a C. It becomes the constant. It becomes what? Are you getting my point? It becomes a constant a. Now we can't change it. So what's the difference between if I use var a and I use let a and I use the const a? Let's try to understand this today. Okay. Okay. Here I got my this thing. We had JavaScript here somewhere. JS. Okay. We have created this file here. Okay. This is saying something learning JavaScript, and we put up. Then we have put up the JavaScript in a different file. Okay, and then we linked it with the script source. Many times we also say here type. Okay, we also say here type, like we say na usme kisme. So we can say it's a text oblique JavaScript. You can say like that also, right? If you like control this. Now, if you give it a go, we'll try to see what's happening here. It has to come on the side. Now it's giving that, it's giving that na assalamu alaikum, because why from that alert comes? It comes in a JavaScript file. In a JavaScript file, we have alert. This I don't want this alert to be done today. I want to understand what's the difference between var, let, and okay. The first thing is in a var is it is global. Its domain is global and block. जो var आपका है, इसका जो डोमेन है, इसका जो स्कोप है, वो ग्लोबल भी है और इसका ब्लॉक भी है. ठीक है. जो आपका लेट है उसका जो स्कोप है वो ओनली ब्लॉक है. ओनली क्या है? ब्लॉक. It doesn't go outside the block. How to understand it? We need to have an example for this. ठीक है. Okay. I will let make you understand this thing only. ठीक है. और ये दो पहले करेंगे, इसके बाद ये करेंगे. पहले ये भी बता दूं मैं कि where आप रीडिक्लेयर कर सकते हो. एक दूसरी डिफरेंस where एंड let की ये है कि where आप रीडिक्लेयर कर सकते हो within same scope, लेकिन let नहीं कर सकते. लेट को डिक्लेयर विद इन सेम स्कोप नहीं कर सकते. डिफरेंट स्कोप में कर सकते हैं. जैसे ये ब्लॉक है, बाहर रखा, अंदर रखा, फंक्शन के अंदर रखा, वो वाला अलग ए है, ये वाला अलग ए है, वो कर सकते हैं विद इन सेम स्कोप में. कह रहा हूँ कि एक ही फंक्शन के ऊपर आप कह रहे हो where a is equal 24, फिर आप फिर से कह रहे हो where a is equal समथिंग एल्स. यू कैन डू दैट, लेकिन लेट नहीं करने देगा. बोले कि भाई आपने तो एक किया, इसीलिए हमने where को ऑब्सोल्यूट कर दिया. 2015 से पहले था जो एक्मा हमने कहा ना, एक्मा स्टैंडर्ड्स EC5 जो हमारा था उससे उसमें था. EC6 जब आ गया तो उसमें वैर का हमने लेट इस्तेमाल किया उसके बाद, क्योंकि ये ड्रॉबैक एक थी. कौन सी ड्रॉबैक की बात कर रहा हूं मैं ये ड्रॉबैक की बात कर रहा हूं. देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक वैर है, ठीक है, अगर वैर a इक्वल्स टू 56, ओके. नाउ आई विल से a equals to 90, not in fact I could say 99, okay, and I say a equals to Junaid. These are all allowed. There is no issue with it. Okay. Yes, I will do it. See, I am saying ना मेरे को ब्राउजर चाहिए, ठीक है ना.
I'm saying, is it okay? I'm saying where a is 56, then I am updating a, वो तो होगा ही, वेरिएबल तो इसी का नाम है, लेकिन हमें डेटा टाइप ही चेंज कर रहा हूँ. पहले नंबर था, अब स्ट्रिंग कर दिया. ठीक है, पहले क्या था, नंबर, अब ये अलाउड है. अगर हम अभी देखना चाहते हो तो मैं इसको करूंगा console dot log and I will say type of a, type of a, देखिए a का क्या टाइप है. ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे करूंगा मैं, I should also use the terminators maybe. फिर यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल एस, सेव इट. नाउ इफ यू सी इट इन अ कंसोल, okay, in a spec, or say control shift and J, there is a console somewhere coming. Where is console? बहुत छोटा हो गया कंसोल, इधर से होगा कंसोल. हाँ जी, हाँ हाँ, कंसोल. So we got जो वाला आपने समझ क्या क्या है. हाँ तो साउंड सपोर्ट डिस्प्ले पोर्ट. सो इसमें मगर समझ क्या है, इसमें लगाऊं खुद अलग चीज लैपटॉप. हाँ सोच लगाऊं या लगाऊं वो डिस्प्ले पोर्ट. भाई का चला कोनी केमिस मदी हम मुझे कला सो देखें आपका कंसोल में, आप देखिए पहले नंबर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग. दिख रहा है कुछ, यहाँ पे नंबर आ रहा है, पहले आ रहा है स्ट्रिंग. यानी कि आपने चेंज ही कर दिया, क्योंकि आपकी डायनेमिकली टाइप्ड है, तो आपको डेटा लिखने की जरूरत नहीं है. ए मैंने पहले नंबर कर दिया, उसके बाद मैंने इसको खुद ही मैंने लिखा क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं, वी डोंट राइट बिकॉज इट डायनेमिकली टाइप्ड. आपने क्या कंटेंट डाले उसके हिसाब से ये करेगा. ठीक है ना. अगर अब आप एक काम करते हो, ये जो ड्रॉबैक वाली चीज है, ड्रॉबैक वाली चीज ये है, देखिए क्या है वैर की. मैं कह रहा हूं वैर ए इक्वल्स टू से फॉर 67, ये करने देगा, ये कंट्रोल भी ये करने देगा. ठीक है ना. मैं अगर इसमें सीधे ए ही प्रिंट करूंगा, ए का क्या वैल्यू है, ठीक है ना, कंट्रोल एस. अब यू सी 67 वहां से आ गया है ना, आ गया ना, यहां से मोटा नहीं हो सकता. अच्छा ठीक है, एनीवेज ये तो मोटा हो गया, लेकिन वो उतना ही रहेगा. बात समझ आ रही है. अब क्या है इसमें प्रॉब्लम, ये कि एक तो मुझे मुझे चाहिए था भाई, मेरे को दूसरा वेरिएबल चाहिए था इसमें. हो सकता है मैं भूल ही गया था, ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैंने ये मुझे करने दे रहा है ना. आपने एक वेरिएबल वही खड़ा किया था, हम प्रोग्राम करते जा रहे हैं, मैं भूल ही गया कि मैंने डिक्लेयर किया था. ठीक है, और मैं मुझे याद नहीं था कि मैंने किया था ये डिक्लेयर, और मैंने वही वेरिएबल फिर से करने की कोशिश की, और ये करने देगा. ठीक है. अगर ये वेरिएबल हमने लेट से किया होता, किससे किया होता, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था. ये आपको करने देगा फिर से, ये बोलेगा एरर हो गई भाई साहब, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. दिस इज एडवांटेज, दिस इज गुड थिंग, दिस इज व्हाट, क्योंकि अगर एक ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी नाम का मैं क्यों फिर से करूं अगर वो ऑलरेडी है. यानी कि तो मिस्टेक ही लगती है. ठीक है ना, ये तो आउट ऑफ मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसीलिए वैर को हटा के लेट कर दिया गया. एक तो ये डिफरेंस है. लेकिन दूसरी मोटी डिफरेंस है, वो ये है कि जो आपका वैर है वो ब्लॉक्ड भी है और ग्लोबल भी है. ठीक है, लेकिन जो आपका लेट एंड कांस्टेंट है वो आपका सिर्फ ब्लॉक्ड है. इसको समझने के लिए ऐसे समझ नहीं आता है, इसको समझने के लिए एग्जांपल करेंगे. ठीक है ना. Let's do an example. What I do here is I will cut this all, I will comment it out, control /, okay, control Z. हाँ जी, concentrate here. मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा. पहले वैर से करते हैं, वैर a equals to true for example. What now, what will be the type of a, boolean. We understand that, right? Not that big thing. Are you getting this point? Okay. Now I say where a equals to true. Now I create a function. We will read function later on, but to understand this I have to create a function and if and all.
Okay, we already know functions and if else and all. It doesn't take too much of time to understand. Let me create a function here. I say function f, okay, and there inside the function I'm saying if a equals to true, okay. देखिए a एक्सेस होगा उधर, हाँ होगा, क्योंकि a अपने फंक्शन के बाहर गया है, ठीक है, वो इसके अंदर भी एक्सेस हो सकता है। अब अगर a इज इक्वल ट्रू, ठीक है ना, तो फिर अब एक काम करें भाई साहब, जो आपका एक y बना लें आप, where y equals to 99, 88 रखें आप, ठीक है, whatever, ओके, where y is equal to 88 आपने, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ a is equal true, वेरिएबल y को क्या बना रहा हूँ मैं, 88, अगर ट्रू हो गया, यार मुझे सोचना पड़ेगा उसके हिसाब से करना है ना, कि वो मैप करने के हिसाब से, मैंने बाहर एक a रखा, वो एक्सेस होगा, अब वेर में मैं y कह रहा हूँ 88 है, ये भी एक्सेस होगा ही होगा, अगर ये तो घुसेगा क्योंकि a तो ट्रू है, ये वेरिएबल y को क्या बनाएगा, 88 बनाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं इफ के बाहर जा रहा हूँ, मैं इफ के बाहर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं y को प्रिंट करा रहा हूँ, किसको, यहाँ पे y को प्रिंट करा रहा हूँ, कहाँ पे, y मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, अंदर डिक्लेयर किया ना, और इसको एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ, इफ के बाहर, इफ के, क्योंकि वैर मेरा मानना है कि वैर का जो है वो ग्लोबल भी है और ब्लॉक्ड भी है, तो मेरा ख्याल है क्योंकि फंक्शन के अंदर ही है, तो ये ग्लोबल इस पूरे फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो फिर होगा, फिर देखेंगे कंट्रोल एस, तो यहाँ पे हमें कुछ चला नहीं, क्यों नहीं चला, नहीं टर्मिनेटर का मसला नहीं है, वो मसला नहीं है भाई, टर्मिनेटर का मसला नहीं है, यहाँ पे मसला दूसरा है, ये चलेगा नहीं फिर भी, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो लिखी है आपने, फंक्शन को लिखने के बाद क्या करोगे, तो कॉल नहीं करेंगे चलेगी कैसे ठीक है, अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ बाहर से कहीं से, मैं इस फंक्शन को f को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल एस, तो चल रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 88, वी कैन राइट हियर लाइक दिस, वी कैन राइट हियर इन अ स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू, बंद करें और फिर कॉन्कैटनेट करें, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू y, इसने कर देते प्रिंट ऑफ स्कैनफ में, तो आ गया सर। अगर मैं ये लेट करता, अगर मैं ये y क्या करता, लेट, कंट्रोल एस, अब मेरा ख्याल है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लेट है वो ब्लॉक्ड है, क्या है, यानी कि वो सिर्फ इस इफ में एक्सेस होगा, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, वैर होगा, वैर, ठीक है, तो आपकी यूजेज के हिसाब से अब आप करना चाहिए, आपको समझ आई बात, बिकॉज इट इज बिटवीन द इफ, ओके ना, ये इफ के बीच में है ना, तो लेट का जो स्कोप है वो ब्लॉक है, क्या है, कांस्टेंट जो दूसरा है उसका स्कोप भी ब्लॉक है, ये इस इफ के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ जी, वैर होगा, क्योंकि वैर होगा पूरा कहां से, वो होगा इस पूरे फंक्शन में, फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, फंक्शन के बाहर एक्सेस, फंक्शन के बाहर दोनों एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर लिख रहे हो ये लिखो, ठीक है ना। एक और बात, हाँ, हाँ लेट मैंने दिखाया है कि ये हो रहा है, सो ये होता है कि ब्लॉक्ड एंड नॉन, ये आपका ये डिफरेंस, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब आपके जो वेरिएबल है ग्लोबल एंड ब्लॉक, और लेट जो है ओनली ब्लॉक, कॉन्स्टेंट भी ब्लॉक है, रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन रीडिफाइन इट, वी कैन, हाँ बातें नहीं यहाँ देखें हम, वी कैन रीडिफाइन इट, वेयर कैन बी रीडिक्लेयर्ड, ओके, कोई बात नहीं, listen to me, what I'm saying, you can redeclare where, but you can't redeclare let, दो बार नहीं कर देगा एक ही स्कोप में, हाँ आप अगर आपने आपने अगर आपने ऐसा किया कि you have a variable here where, if you have a variable outside, for example where a, for example let से करता हूं मैं let a equals to true, अब मैं इस फंक्शन में कहूंगा let
ए, मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ ना, ए इज इक्वल टू 80 व्हाटएवर, ये प्रॉब्लम नहीं है. If I do it, it's not a problem. Why is not it's still a problem because what? Y is we're accessing Y. Okay, I cut it out. Cut this. This is not a problem because ये A का स्कोप इस if में है और इस A का स्कोप आउटसाइड है, ग्लोबल है. So there is no issue. Okay, ये A दूसरा है, ये A दूसरा, because इस A का सिर्फ वैल्यू कहाँ पे, अंदर, बाहर नहीं है. So that means we can do that. लेकिन एक ही स्कोप में मैं फिर से लेट करूं A, इसी स्कोप में मैं A कर रहा हूं फिर से, लेट A इज इक्वल टू व्हाटएवर, ये नहीं चलेगा क्योंकि अब आप एक ही स्कोप में करो. हाँ, अगर ये वैर होते तो कोई इशू नहीं था. अगर ये वैर था और ये भी वैर था, वैर करने देगा. ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है ना, ये तो ड्रॉबैक है, इसलिए तो चेंज किया हमने कंट्रोल एस. इसमें कोई इशू नहीं. समझ में आ गई बात? हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज हम सीखते हैं यहाँ पे. पहले मैं इस सारे को बंद करता हूँ, कंट्रोल दिस व्हाटएवर. एक और चीज में सीखने वाली बात यह है कि मैंने एक कंसोल डॉट आउट किया, मैंने क्या कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना. इसमें मैं ए को प्रिंट करना चाह रहा हूं, अभी ए का वजूद ही नहीं है. अब मैं वैर यहां पे कर रहा हूं, वैर ए इक्वल्स टू 56. कहां पे कर रहा हूं? नीचे. मैं वैर को नीचे डिक्लेयर कर रहा हूं, इस्तेमाल ऊपर कर रहा हूं, डिक्लेरेशन पहले ही. ओके, लेकिन ये हो सकता है वैर के साथ, ये हो सकता है क्योंकि वैर इज डिक्लेयर्ड एज एन अनडिफाइंड. अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, इसका जो है इस ए को ऊपर ले जाएगा. ये जो आपका इंटरप्रेटर है जो इसको करेगा काम, वो इस वैर को पहले ऊपर करेगा, डिक्लेयर करेगा, ठीक है, फिर इसको इनिशियलाइज करेगा और फिर इसको पहले लॉग ए प्रिंट होगा, फिर इनिशियलाइजेशन होगी. इसलिए 56 नहीं होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा. ये कोड जो है इसको रीडिफाइन किया जाएगा. कैसे? पहले वैर को डिक्लेयर किया जाएगा, खाली वैर ए, वैर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कंसोल लॉग ए होगा. अगर आप कह रहे हो वैर ए विदाउट इनिशियलाइजेशन, विदाउट, इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड. इट इज जो हमने ट्रिवियल डेटा टाइप देखा, जो ट्रिवियल डेटा टाइप हमारा अनडिफाइंड है, तो इसको अनडिफाइंड डेटा टाइप दिया जाएगा. उसके बाद आपको कंसोल लॉग ए वही अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, उसके बाद ए इज इक्वल टू 56 आ जाएगा. लेकिन अगर आप ये ही चीज करते हैं लेट के साथ, ओके, तो यहां ये नहीं चलेगी, लेट के साथ ये नहीं चलेगा. तो लेट, क्योंकि लेट क्या होता है, अगर आप कहोगे लेट ए ओनली, फॉर एग्जांपल यू से हियर लेट बी, but you are not assigning anything, you're not assigning anything, and I am saying here I want to print b, control s, now it is again undefined. It's again what? If I am saying let b, I'm not assigning anything and I want to print b, it is called what? Undefined. ठीक है ना. लेकिन हमने ये चीज देखा कि अगर आपने वैर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर बाद में किया, उसका इस्तेमाल किया, तो वो एरर नहीं दिखा रहा है, वो अनडिफाइंड दिखा रहा है. ठीक है, एक ये चीज हो गया. और तीसरी बात यहाँ पे लास्ट बात हम करेंगे कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्या है, मैं कहता कॉन्स्टेंट सी, ये एरर है. कॉन्स्टेंट के साथ ये नहीं चलेगा, कॉन्स्टेंट के साथ जरूरी असाइनमेंट भी जरूरी है. कॉन्स्टेंट क्या है, असाइनमेंट, कंट्रोल एस, नाउ इट्स नॉट एन इशू. एक और चीज कि अगर आप सी में अपडेट करना चाहते हो, अब ये नहीं चलेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट्स कैन बी अपडेटेड. ठीक है, बाकी कॉन्स्टेंट लेट की जैसा ही है, जो लेट को स्कोप है वगैरह सारा वही कॉन्स्टेंट को है. जैसे लेट काम करता है वैसे कॉन्स्टेंट काम करता है, लेकिन अपडेट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है इसका. ठीक है जी, समझ में आया? That's all for today. We continue today. We have program again. They are coming. I will see what they are doing. Okay.